Good morning, dear students. I am Neha Raghuvanshi, the Assistant Professor of Hardar Degree College. Today we are going to discuss a new grammar topic, adjectives and the kinds of the adjectives. Okay, so what is the adjectives? Generally adjectives क्या होते हैं? Well, suppose अगर मैं कह रही हूँ, if I am saying my students are very intelligent, my students are very classy, they are amazing, they are very smart and all these words जो भी मैंने अभी तक आपको बताए हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को मैंने डिस्क्राइब किया है इन सच अमेजिंग वर्ड्स, these all words are basically adjectives कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, my students are very elegant, my students are amazing. तो what are the adjectives? Adjectives हमारे describing words होते हैं, है ना? These are the describing words which describes our nouns and pronoun, जो हमारे noun को, हमारे pronoun को और ज़्यादा modify करते हैं, which gives some extra information about the noun or the pronoun. Okay. So this was all about the adjectives. Now we come to our next topic, that is the types of the adjectives. How many kinds of the adjectives? So there are total 8 kinds of the adjectives. Like first one is adjective of quality, adjective of quantity, third one adjective of number, the fourth one is demonstrative adjectives, fifth is interrogative adjectives, and sixth one is the possessive adjectives, seventh is the proper adjectives, and eighth is the emphatic adjectives. So now we are going to discuss one by one all these kinds of the adjectives. Okay, the first one is the descriptive adjectives, or we can say that the adjectives of quality. So what is it? This kind of adjectives is used to describe a noun or pronoun. मतलब इस तरह के एडजेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं? This generally used to describe our noun or pronoun. They define the features and the quality of the noun and pronoun. यहाँ पे ये हमें noun की और pronoun की quality बताता है, उनके features बताता है. मतलब हम we are talking about the quality of the noun or maybe the features or we can say the character, है ना? हम यहाँ पे उनके character के बारे में बात करते हैं, उनके features के बारे में बात करते हैं, किसी noun की quality के बारे में बात करते हैं. So this is called a qualitative adjective as well. इसे qualitative adjective भी कहते हैं. Okay, so let's take an example. First one, the Mumbai is a crowded city. So here we are talking about the Mumbai. अब मुंबई कैसे सिटी है? मुंबई काफ़ी crowded city है. तो यहाँ हमें उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है. ओके, सिटी की क्वालिटी के बारे में. एंड सिटी, दिस इज आवर नाउन. यहाँ पे हम नाउन मतलब नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं. सो इट इज द क्वालिटेटिव. क्राउडेड इज योर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. द स्मॉल पपी वॉज फाउंड यस्टरडे. हाउ वॉज द पपी? पपी जो मुझे मिला था कल, वो कैसा था? स्मॉल था. ओके, सो ये भी हमें पपी की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, उसके साइज के बारे में बता रहा है. मतलब हमारे नाउन को फर्दर क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है. ओके, सो पपी वॉज स्मॉल. वी हैड अ फैंटास्टिक ट्रिप लास्ट ईयर. हमारी जो ट्रिप रही है लास्ट ईयर, इट वॉज वी हैड अ वेरी फैंटास्टिक ट्रिप. फैंटास्टिक मतलब ये भी आपकी ट्रिप को और ज्यादा उसकी क्वालिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि हाउ वॉज योर ट्रिप. तो फैंटास्टिक इज योर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. शी हैंडेड मी अ ब्लू बुक. उसने मुझे बुक हैंड ओवर की. ठीक है, मतलब मुझे बुक उसने दी, लेकिन वो बुक कैसी थी? हाउ वॉज दैट बुक? इट वॉज ब्लू. मतलब आपको यहाँ पे बुक का कलर पता चल रहा है. ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स आर अबाउट योर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. जो मेरे नाउन की या प्रोनाउन की जिस भी बारे में मैं बात कर रही हूँ उसकी मुझे क्वालिटी के बारे में और ज़्यादा फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी को डिफाइन करते हैं. So all these was about your qualitative adjectives. I hope you have understand. Okay. Second one is about the quantitative adjectives, or we can say the adjectives of quantity. These are used to describe, to define an amount or the quantity of a noun. It means when I talk about an amount or the quantity of a noun.
When I talk about some the quantity of something, it might be anything, है ना, किसी भी noun की जब मैं quantity के terms में बात कर रही हूँ या मैं amount के terms में बात कर रही हूँ, so it denotes the quantitative adjectives. They can either define a particular amount or an estimation. या तो आपको particular amount given होगा या फिर एक estimation given होगा. Like for example 2 kgs, okay, 2 kg. 3 kg, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर अमाउंट आपको गिवन है, ओके. और अगर मैं कह रही हूँ सम, फ्यू, ओके, सो दिस इज अबाउट द एस्टिमेशन. सो सम एग्जाम्पल्स आर, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं, लाइक ऑल, नो, फ्यूज, मैनी, सम, एनी, ईच, आइदर, एवरी, होल, नन, मोस्ट एंड लिटिल, ओके. ऑल दिस वाज द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. मतलब हम यहाँ पे क्वांटिटी के टर्म्स में बात करते हैं. We talk about the quantity of the noun or the pronoun. Maybe आपको proper amount given होगा या फिर आपको sentence में एक estimation given होगा. Okay, let's take an example. Okay, the first example is about I have only the few balloons to decorate the room. मेरे पास कुछ ही बलून्स हैं रूम को डेकोरेट करने के लिए. सो व्हाट इज योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स? आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? फ्यू. मतलब फ्यू यानी वी डोंट नो हियर कि हाउ मैनी बलून्स एग्जैक्टली, है ना, हमें कितना ये नहीं पता चल रहा है कि कितने बलून्स हैं, फ्यू बलून्स हैं, ओके. मतलब एक एस्टिमेशन आपको यहाँ पर गिवन है, क्योंकि बात तो यहाँ पर क्वांटिटी की हो रही है, तो फ्यू आपका क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. There are 10 pencils in my box. How many pencils are there? कितनी पेंसिल्स हैं आपके बॉक्स में? 10 पेंसिल्स है. तो यहाँ आपको प्रॉपर एग्जैक्ट आपको अमाउंट गिवन है 10 पेंसिल्स. I have got a little money for new dress. न्यू ड्रेस खरीदने के लिए, न्यू ड्रेस के लिए मेरे पास थोड़े से ही मनी है. So how much money we have here? We don't know, but little money. मतलब यहाँ पर फर्दर हमें एक एस्टिमेशन गिवन है. So little is your quantitative adjectives. Can you please lend me the some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? So some क्या है यहाँ पे? Some is your quantitative adjectives. 5 girls are participating in school functions. How many girls are going to participate? So answer is your 5 girls. 5 is your again the quantitative adjectives. So all these words about the quantitative adjectives जो quantity बता रहे हैं, है ना. आपको यहाँ पे कुछ sentence में आपको proper amount given नहीं है, but estimations given है. Clear? Okay. So now we are having some practice questions. So circle the qualitative adjectives. आपको यहाँ पे qualitative adjectives को circle करना है and underline the quantitative adjectives. और quantitative adjectives को आपको यहाँ पे underline करना है. So first question, okay. You look hungry. You look hungry. Haven't you eaten anything since morning? है ना. तो क्या तुम मुझे भूखे लगते हो और क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? So you look hungry. So hungry क्या है यहाँ पे? क्वालिटी पता चल रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है. तो you look hungry is our qualitative adjectives. तो qualitative adjective को मुझे यहाँ पे सर्कल करना है. So I will make a circle around the hungry, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. You look hungry. Haven't you eaten anything since morning? Second one, I drank half of my mango shake. मतलब मेरे पास जो मैंगो शेक था उसमें से मैंने हाफ मैंगो शेक ऑलरेडी पी लिया. मतलब एक्शन हैज कंप्लीटेड ऑलरेडी इन द पास्ट. सो कितना मैंगो शेक पी लिया? हाफ ऑफ द मैंगो शेक, ओके. तो ये जो हाफ है यहाँ पे, हाफ, ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, ओके. ओके, हम यहाँ पे इसे सर्कल नहीं करेंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वांटिटी पता चल रही है और हमें क्वांटिटिव एडजेक्टिव को क्या करना है? अंडरलाइन करना है. सो हियर आई जस्ट अंडरलाइन इट. हाफ क्या है मेरा? क्वांटिटी हमें बता रहा है. हाफ ऑफ मैंगो शेक, तो मैंने आधा मैंगो शेक जो है वो पी लिया. I ate the some potato chips. I ate some potato chips. How many potato chips? We don't know. Okay, some potato chips. So again we talk about the quantity in terms of the quantity. He has many cherries in his large pocket.
he has many cherries in his large pocket, मतलब उसके large pocket में बहुत सारी cherries उसके पास थी। ओके तो how many मतलब how much exactly, तो आपको यहाँ पे proper amount given नहीं है, but many मतलब बहुत सारी। So again we underline it. It's about the quantitative adjectives. Why are you carrying a dirty bag when you have a clean one at home? Why are you carrying a dirty bag? तुम ये dirty bag, ये गंदा बैग क्यों कैरी कर रही हो? When you have a clean one at home, जबकि ऑलरेडी तुम्हारे पास एक clean one है ना, जो बिल्कुल साफ सुथरा clean बैग है, वो एक ऑलरेडी आपके घर पे है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो, बट why are you carrying a dirty bag? तो देखिए बैग की हमें यहाँ पे क्वालिटी पता चल रही है। तो बैग कैसा है? बैग डर्टी है। सो वी अगेन मेक द सर्कल अराउंड इट बिकॉज इट्स डिनोट द क्वालिटी। ये क्वालिटी को सिग्निफाई कर रहा है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? सो दिस वाज द सम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड what are the qualitative adjectives and what are the quantitative adjectives. Okay, keep practicing. Okay, now we come to our next category of the adjectives, that is the adjective of number. So what is the adjective of number? देखिए adjective of number में आपको ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बुक्स में आपको quantitative adjectives के नाम से मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको adjective of number के नाम से मिलेगा, है ना। मतलब ये जो हम types of adjectives पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हमने quantity के terms में बात की है, and here in the adjective of number में we talk about, we consider the things in the numerical form, in the numbers form. आप यहाँ पे number के regarding आप चीज़ों को consider करोगे। So there are the two basic things, cardinal and ordinal. Okay, तो वो क्या होते हैं मैं आपको, हम अभी उस पर डिस्कस कर रहे हैं, we are going to discuss upon that thing. A numeral adjective is an adjective that tells us about how many. Okay, how many मतलब कितना। ओके, हाउ मैनी यानी कितने नाउन थे, एंड हाउ मच मतलब कितना, और इन व्हाट ऑर्डर द नाउन इज इन। हाउ मैनी नाउन्स मतलब कितने नाउन, हाउ मच यानी कितना, और इन व्हाट ऑर्डर द नाउन इज इन व्हाट ऑर्डर मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। क्लियर? So there are the basically two kinds of the numeral adjectives. हमारे पास दो तरह के numeral adjectives हैं। The first one is definite numeral adjectives. Definite numeral adjectives use the cardinal number used in the amount. Okay, definite numeral adjectives अगर मैं बात कर रही हूँ, मतलब मेरे पास यहाँ पे एक डेफिनेट नंबर होगा, एक प्रॉपर नंबर आपको यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, See, there are the two kinds of the numeral adjectives. Okay, मतलब हम यहाँ पे नंबर के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वन है दैट इज द डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे आप कार्डिनल और आप ऑर्डिनल, है ना, ये दो चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हो। अगर मैं कह रही हूँ कि आई हैव 2 मैंगोज, आई हैव 2 मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज? 2 मैंगोज। तो ये जो 2 मैंगोज है, ये 2 क्या है यहाँ पे? एग्जैक्ट अमाउंट है। ओके, एग्जैक्ट नंबर है यहाँ पे, अमाउंट नहीं कहूँगी, एग्जैक्ट नंबर। ओके, ये हो जाता है आपका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल मतलब 1, 2, 3, 4, इट माइट बी एनीथिंग, है ना। लैक्स में भी हो सकता है आपका नंबर, मतलब 1 से लेके आपका प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। इट विल बी कंटिन्यू टिल द लैक्स एंड फर्दर मोर। एंड ऑर्डिनल में क्या होता है, नंबर्स आर यूज इन द ऑर्डर। आप यहाँ पे नंबर की ही टर्म्स में बात कर रहे हो, बट इन अ ऑर्डर, एक ऑर्डर में, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ सुरेश गॉट द सेकेंड प्राइज। ओके, सुरेश गॉट द सेकेंड प्राइज, तो यहाँ पे ये जो सेकेंड है ये क्या हुआ? ऑर्डिनल। ओके, मतलब ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स, यानी वो होगा तो डेफिनेटली, मगर यहाँ पे हमने ऑर्डिनल, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है तो वो हमारा होगा ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और व्हेन आई सेड लाइक I had the 3 chocolates, तो 3 क्या है यहाँ पे? आपका कार्डिनल नंबर होगा। ओके,
सो इट वाज अबाउट द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल। मतलब आपका जब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात हो रही है तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आपको एक प्रॉपर आपके पास नंबर होगा। क्लियर? या तो पोजीशन के फॉर्म में होगा, यू विल टॉक अबाउट द पोजीशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। सपोज आई में पहले आई है ना, तो फर्स्ट आई केम, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपका जो फर्स्ट है वो ऑर्डिनल है। ओके, और अगर आपको प्रॉपर नंबर आपको गिवन है लाइक 2, 3, 4 तो फिर वो आपका हो जाता है कॉर्डिनल। मतलब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आपके पास एक प्रॉपर नंबर आपको गिवन होगा। सेकेंड आपकी कैटेगरी आती है इसी में फर्दर इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स ये क्या होते हैं? दे इंडिकेट एन इनडेफिनेट नंबर। ये आपको एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताएंगे, आपको एग्जैक्ट नंबर गिवन नहीं होगा, आपको इनडेफिनेट नंबर गिवन होगा, है ना। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स आर सम, मैनी, नो, सेवरल, एनी एंड फ्यू। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। मतलब यहाँ आपको एक एस्टिमेशन आपको यहाँ पर गिवन होगा, आपको प्रॉपर आपके पास नंबर नहीं होगा। ओके, और ना ही हम यहाँ पे पोजीशन के टर्म्स में हम बात करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल्स, द थर्ड मैन वाज सिटिंग ओवर देयर। मतलब 3 आदमी थे। ओके, हाउ मेनी पीपल आर देयर? टोटल 3। लेकिन वो जो तीसरा आदमी था, ओके, जो थर्ड वन था, द थर्ड मैन वाज सिटिंग ओवर देयर, वो वहां बैठा हुआ था। तो कौन सा थर्ड? मतलब हम यहाँ पे पोजिशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये वाला कौन सा फर्स्ट एग्जांपल आपका कौन सा हो जाएगा? पोजीशन के टर्म्स में डेफिनेट। ओके, डेफिनेट में विच वन? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, इसका आंसर, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। लेकिन अगर हम इसे इनडेफिनेट और डेफिनेट में हम इसे मतलब कैटेगराइज करें तो आप यहाँ पे थर्ड मैन के बारे में बात कर रहे हो, आपके पास नंबर है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा? डेफिनेट। ओके, तो मैं इसे डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सेकेंड, ही बॉट 10 पेंसिल्स फ्रॉम द मार्केट। उसने मार्केट से कितनी पेंसिल्स लाई? कितनी पेंसिल्स उसने खरीदी है? 10 पेंसिल्स उसने खरीदी है फ्रॉम द मार्केट। तो 10 ये भी क्या हो जा रहा है आपका? डेफिनेट। ओके, मैं इसे डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और कार्डिनल या ऑर्डिनल ये कौन सा है? ये लोग आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट में। देयर आर द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? फ्यू स्टूडेंट्स हैं, मतलब फ्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या मुझे एक डेफिनेट नंबर मिला? कार्डिनल या क्या मैं यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ? कार्डिनल ऑर्डिनल के बारे में बात कर रही हूँ? नो, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब एक एस्टिमेशन मुझे यहाँ पे मिला, एक एस्टिमेशन गिवन है, तो ये हो जाता है आपका इनडेफिनेट। आई रिप्रेजेंटेड बाय द आई। आई रोट मैनी लेटर्स टू यू। मैंने तुम्हें बहुत सारे लेटर्स लिखे। कितने? मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे, तो अगेन ये हो जाता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। आई रिप्रेजेंटेड बाय द आई। ओके, डी सिग्निफाइज टू द डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एंड आई सिग्निफाइज टू द indefinite numeral adjectives. Okay, so practice questions. Now here we are going to solve some practice questions based upon the डेफिनेट एंड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। मतलब आपका देखिए एक आपका बहुत बड़ा सा अम्ब्रेला है, आप ऐसे कंसीडर कर लो, और उस अम्ब्रेला को मतलब वो जो अम्ब्रेला है इट्स अबाउट द क्वालिटेटिव। ओके, जो अभी हमने अभी लेटेस्ट अभी हमने रिसेंटली है अभी कंप्लीट किया, डिस्कस किया है, तो इट्स अबाउट द क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। अब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को फर्दर यू कैटेगराइज इनटू द 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जो हमने अभी रिसेंटली अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इट्स अबाउट द न्यूमरल एडजेक्टिव। एंड सेकंड पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो वो अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, ये जो हमने न्यूमरल एडजेक्टिव अभी पढ़ा है, मतलब हम नंबर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी ही बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे नंबर के टर्म्स में बता रहे हैं, है ना। लाइक कार्डिनल नंबर होगा हमारे पास 1, 2, 3, या फिर ऑर्डिनल नंबर होगा, मतलब ऑर्डिनल पोजिशन के टर्म्स में हम बात करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर ऐसा लग रहा है आपको कि कंफ्यूज हो रहे हैं तो जस्ट बी कंट्रोल, रिलैक्स, द थिंग्स विल बी इजीली अंडरस्टैंड टू यू। ओके, जस्ट कंट्रोल। Okay, so we just solve such questions, this much questions only. Okay students, she bought the some flowers for the party. Just 1 minute, मैं erase कर देती हूँ ये पूरा।
ओके हम क्विकली इसका एक बार हम क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। शी बॉट द सम फ्लावर्स फॉर द पार्टी। अब उसने पार्टी के लिए कुछ फ्लावर्स परचेस किए हैं, तो कितने फ्लावर्स परचेस किए हैं? आपको एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर गिवन है क्या? नहीं है ना, सम। ओके तो ये कौन सा हो जाता है आपका? इनडेफिनेट। इसे आप आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ में कितनी बुक्स है? मैनी बुक्स हैं शेल्फ में, मैनी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, मतलब काफी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। मिनी इज द सेकेंड गर्ल इन आवर क्लास। मिनी इज द सेकेंड गर्ल। मिनी जो है सेकेंड गर्ल है हमारी क्लास में, मतलब ये पोजीशन बता रहा है मुझे। ओके यहाँ पे मुझे पोजीशन पता चल रही है, तो ये हमारा डेफिनेट ही होगा। ओके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, लेकिन डेफिनेट में ऑर्डिनल। ओके देयर आर 8 ऑरेंजेस इन द बाउल। बाउल में कितने ऑरेंजेस है? 8 है। एग्जैक्ट आपको यहाँ पे नंबर आपको मतलब 8 आपको नंबर गिवन है, तो ये हो जाता है आपका डेफिनेट। ओके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। देयर आर ओनली द फ्यू सीट्स लेफ्ट। कुछ ही सीट्स बची हैं, तो फ्यू। ओके आपको ये इनडेफिनेट हो जाएगा, ये मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दिस इज द इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ही इज गोइंग टू सेल हिज 2 कार्स। ही इज गोइंग टू सेल हिज 2 कार्स। हाउ मेनी कार्स? 2 कार्स। तो आप यहाँ पे आपको नंबर गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेट। ओके डी। आई सॉ द सेवरल बर्ड्स इन द पार्क। मैंने बहुत सारे बर्ड्स देखे पार्क में, तो several. Okay several, it denotes indefinite numeral adjectives I. There is no milk in the fridge. फ्रिज में मिल्क नहीं है, तो नो। ओके नो भी जो होता है वो इनडेफिनेट को ही सिग्निफाई करता है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही कंसीडर होता है। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हमारे द न्यूमरल एडजेक्टिव्स, क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स, जो हमने क्वांटिटी के टर्म्स में बात की है। हमारा उसका फर्स्ट जो हमने पोर्शन था, मतलब इसको हमने फर्दर डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। इट वॉज अबाउट द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें हमने नंबर को फर्दर डिवाइड किया है डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द थिंग्स, बट कीप प्रैक्टिसिंग ओके एंड कीप लर्निंग. So thank you students, thank you. Okay, so this was all about our today class, and the rest of the further continues. Okay, the rest of the kinds of the adjectives we will be further continue in our next part of our video, because already this video is too long, and so it's not be possible students to be continue the rest of the kinds also. So rest of the slides and rest of the presentation I will be continue in our part 2. Okay, so keep the video, so keep learning and keep watching it and just keep practicing. Okay, now I am going to sign off students. Thank you.